Hello everyone. Now here we will discuss the most important name reaction from the list of preparation of alcohols, that is a Gattermann-Koch reaction. So how from Gattermann-Koch reaction you can prepare an aldehyde, this we are going to see. So in Gattermann-Koch reaction, if we see according to NCERT, in NCERT reaction is written like this: benzene, and it is said that when it reacts with carbon monoxide plus HCl, they have not written this plus sign, it's a comma over there, but more or less same thing, right? In presence of anhydrous AlCl3 or CuCl, then the product formed is your benzaldehyde. So you can say this is a method of, or Gattermann-Koch reaction is a method of conversion of benzene to benzaldehyde. Or if somebody asks you how will you prepare benzaldehyde from benzene, so Gattermann-Koch reaction can be the answer. Right, now this is the Gattermann-Koch reaction, wherein when benzene reacts with carbon monoxide and HCl in presence of anhydrous aluminium chloride, that is AlCl3, and you are already knowing that AlCl3 is a very famous Lewis acid. What are Lewis acids? Acids, A for acid, A for acceptor of lone pair. So this we will discuss. Anhydrous AlCl3 is very famous Lewis acid. So in presence of this or copper chloride, benzene will get converted into benzaldehyde. So now the main thing is to be discussed, that what is the mechanism of this reaction. And one more thing I want to add over here, that Gattermann-Koch reaction is also called as formylation. What I said, this is also called as formylation. So before we proceed and discuss the mechanism of Gattermann-Koch reaction, let us know and understand why this is called as formylation reaction, or you can call it as Friedel-Crafts formylation. Friedel-Crafts formylation. आपने Friedel-Crafts एसिटाइलेशन पढ़ा हुआ है, बट फॉर्माइलेशन वर्ड आपने पहली बार सुना है, पहली बार देखा है. इनफैक्ट एनसीईआरटी में ये वर्ड मेंशन भी नहीं है कि Gattermann-Koch रिएक्शन को हम फॉर्माइलेशन कहते हैं, बट वी नीड टू डिस्कस बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म. एक और आइडिया है विद विच यू कैन रिमेंबर, मान लें किसी ने आपको ये नेम रिएक्शन है तो एग्जाम में पूछ दिया कि राइट Gattermann-Koch रिएक्शन, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बनने वाला है. तो यहाँ ध्यान दें क्या लिखा हुआ है. कोच की स्पेलिंग में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ रिटन CHO. अगर आप ऑर्डर चेंज कर दें तो इसका मतलब CHO इज एल्डिहाइड. तो Gattermann-Koch रिएक्शन इज द मेथड टू प्रिपेयर एल्डिहाइड, इससे याद रख सकते हैं. नाउ वी वर सपोज टू डिस्कस फॉर्माइलेशन क्या है और ये कैसे Friedel-Crafts फॉर्माइलेशन है. तो ज़रा ध्यान दें कि हमने जो है Friedel-Crafts एसाइलेशन पढ़ा था, ठीक है. Friedel-Crafts एसाइलेशन पढ़ा हुआ है हमने. सो उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं. Friedel-Crafts एसाइलेशन, क्योंकि अगर वो याद आ जाएगा तो फॉर्माइलेशन बिल्कुल 1 सेकंड का काम है समझना. Friedel-Crafts एसाइलेशन में क्या होता था कि ऑल्दो आपने अभी बेंजीन का Friedel-Crafts एसाइलेशन पढ़ा नहीं है, आपने अभी तक क्लोरोबेंजीन का पढ़ा है और एनिजोल का पढ़ा है. हेलोएल्केन हेलोएरीन में आपने क्लोरोबेंजीन का पढ़ा है और आपने अल्कोहल फिनॉल ईथर में एनिजोल का जो है एसाइलेशन पढ़ा है. बट दिस रिएक्शन ऑफ बेंजीन, दैट इज बेंजीन अंडरगोइंग एसाइलेशन, आप अभी कीटोन की प्रिपरेशन में आगे पढ़ेंगे. बट क्योंकि आपने Friedel-Crafts पढ़ रखी है तो आपको ये रिएक्शन आसानी से समझ आएगी, ये सोचकर मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो Friedel-Crafts एसाइलेशन में क्या होता है, जो भी रिएजेंट होता है वो किससे रिएक्ट करता है, वो एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है, मतलब CH3C डबल बॉन्ड OCl से रिएक्ट करता है. तो ये रिएक्शन हमें बहुत अच्छे से आती है कि हम क्या करते थे,
यहाँ से ये सोचते थे कि ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ भी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस होती थी कंपल्सरीली, और जो है ये CH3C डबल बॉन्ड हो यहाँ आके जुड़ जाता था। तो ये देखें, ये बन गया कीटोन, इसका नाम होता है एसिटोफिनॉन, है ना। तो एक्चुअली हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं है इस रिएक्शन में, क्योंकि हम कीटोन की प्रिपरेशन नहीं पढ़ रहे। हमें समझना है फॉर्माइलेशन क्या होता है। तो अगर हम एसाइलेशन समझ लेंगे तो फॉर्माइलेशन समझना आसान हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि आपने बेंजीन पे कौन सा ग्रुप जोड़ा, तो इसमें से आपने ये वाला हिस्सा बेंजीन पे जोड़ा है, ठीक, और तभी तो ये बना, राइट। तो ये क्यों ज़रूरी था आप देखें, क्योंकि अब आप क्या कराने जा रहे हैं, अब हम गेटरमैन कोच रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखें, गेटरमैन कोच रिएक्शन जिसे मैं फॉर्माइलेशन भी बोल रही हूँ। तो यहाँ पे आपको दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी कि क्यों फॉर्माइलेशन बोल रहे हैं और इससे क्या रिलेशन है। अब देखो, फ्रिडल क्राफ्ट ऑफ बेंजीन एसाइलेशन जब पढ़ा तो यहाँ बेंजीन था, गेटरमैन में भी यहाँ बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन। यहाँ पर ये रिएक्ट कर रहा था CH3COCl से, और गेटरमैन कोच रिएक्शन में आपने लिखा है कि वो रिएक्ट करेगा COHCl से, ठीक। अब ये COHCl से रिएक्ट कर रहा है, और कैसे रिएक्ट कर रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और क्या बना दे रहा है, बेंजल्डिहाइड बना दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पर एक लिंक जो मिसिंग है वो ये है कि जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आपने एसिटाइल क्लोराइड यूज किया है, वैसे ही यहाँ पर ये जो COHCl है ये एक्चुअली क्या है, इसे देखें ध्यान से। फिर से मैं यही रिएक्शन लिखूंगी, पर अब आपको क्लियर हो जाएगा कि इसे फॉर्माइलेशन क्यों कह रहे हैं। तो ये बेंजीन है, बेंजीन रिएक्ट कर रहा है इस रिएक्शन में HC डबल बॉन्ड OCl से। ये HC डबल बॉन्ड OCl कहलाता है फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड। जैसे ये कहला रहा था एसिटाइल क्लोराइड, वैसे ही ये कहलाता है फॉर्माइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये फॉर्माइल क्लोराइड जो होता है ये बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत अनस्टेबल, और ये ऐसे नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता तो इसे बनाया जाता है रिएक्शन होते होते, कि जब रिएक्शन हो रही हो तो ये बीच में बने और रिएक्शन का प्रोडक्ट बने, उससे पहले ये कंज्यूम हो जाए। तो ये इसको बनाने के लिए क्या यूज होता है, इसे बनाने के लिए CO+HCl यूज होता है। तो ये गेटरमैन कोच रिएक्शन में जो ये आप CO+HCl यूज करते हो, उसका पर्पज ये है कि जब रिएक्शन चालू होगी तो सबसे पहली स्टेप ये होगी कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ये बना देंगे, तब आगे बात चलेगी, ठीक। तो क्योंकि COHCl की रिएक्शन से रिएक्शन के बीच में फॉर्माइल क्लोराइड बन रहा है, इसीलिए ये फॉर्माइल क्लोराइड एक्चुअली बेंजीन पे रिएक्ट करता है, ना कि COHCl। COHCl तो पेरेंट्स हैं किसके, फॉर्माइल क्लोराइड के, और ये रिएक्शन फॉर्माइल क्लोराइड से हो रही, इसीलिए हम इसे फॉर्माइलेशन भी कह सकते हैं। और इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन और पूरा का पूरा सब कुछ फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन जैसा है, इसीलिए मैंने इसको इससे कोरिलेट करने की कोशिश की। अब आप ध्यान दें, यहाँ से भी ये बॉन्ड टूटेगा और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बेंजल्डिहाइड, जैसा कि यहाँ हुआ था, एज इट इज, कोई चेंज नहीं है, केवल रिएजेंट आपका डिफरेंट है। नाउ जो फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन था वो आपको पता है कि किस तरह का रिएक्शन था, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनता है और इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद इलेक्ट्रोफाइल ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है, ठीक है। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होता है। मैकेनिज्म मतलब ये रिएक्शन होती कैसे है। सो पुट द हेडिंग मैकेनिज्म। आई होप आपको ऊपर के एक्सप्लेनेशन से समझ आ गया होगा कि गेटरमैन कोच रिएक्शन को हम फॉर्माइलेशन क्यों कहते हैं। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म में मेजर 3 स्टेप्स हैं।
सबसे पहले हमें देखना है कि फॉर्माइल क्लोराइड जो मैंने कहा कि रिएक्शन के बीच में बनता है वो कैसे बनता है। इसको डाल लें। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्माइल क्लोराइड, दैट इज HCOCl। ठीक है। अब सबसे पहले आप ध्यान दें कि फॉर्माइल क्लोराइड मैंने अभी आपको बताया कार्बन मोनोऑक्साइड की HCl के रिएक्शन से बनने वाला है। यही तो कहा था। ये देखें कि ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये बना देंगे। अब ये कैसे बनाएंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे पहले लिखें आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब ध्यान देने वाली बात है, ऑक्सीजन यूजुअली 2 बॉन्ड बनाता है, पर यहाँ पे 3 बनाए हुए हैं। जब एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाता है कोई भी एलिमेंट तो उस पर प्लस चार्ज आता है, हमेशा याद रखें। जब भी कोई जितने बॉन्ड बनाता है अगर उससे एक एक्स्ट्रा बना रहा है तो उस पर प्लस आएगा। और कार्बन 4 बनाता है लेकिन उसने 3 ही बना रखे हैं तो उस पर माइनस आएगा। ये बात भी याद रखें कि जब कोई जितने बॉन्ड बनाता है उससे ज्यादा बना रखे हैं, जैसे ऑक्सीजन 2 बनाता है उसने 3 बना रखे हैं, तो ऐसे एलिमेंट पे प्लस चार्ज आता है। और कोई ऐसा एलिमेंट जिसने 4 बॉन्ड बनाने हैं या ज्यादा बॉन्ड बनाने और कम बना रखे हैं, जैसे कार्बन 4 बनाता है 3 ही बना रखे हैं, तो ऐसे पे माइनस आता है। ठीक। और यहाँ पर इनका ऑक्टेट कंप्लीट है लोन पेयर से। ठीक। ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 ये बॉन्ड वाले, 2 पिंक वाले, और इधर कार्बन के साथ भी सेम कहानी है। अब ये क्या करेंगे, HCl से रिएक्ट करेंगे। HCl से रिएक्ट करेंगे तो सबसे पहले होगा क्या, ध्यान दें, HCl में हेट्रोलिटिक कोवलेंट बॉन्ड फिजन हो जाएगा और ये Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो H है यहाँ से H+ के फॉर्म में बचेगा, प्रोटॉन के फॉर्म में। तो ये कार्बन का जो माइनस है वो इस H+ को अपनी तरफ ड्रैग करेगा। ठीक। जब ये ड्रैग करेगा तो क्या बन जाएगा, देखें, ये H जो है ये H+ ये जाके इस कार्बन से अटैच हो जाएगा ऐसे, और कार्बन पे माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ देखें ट्रिपल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन क्या ट्राई करेगा कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर खिसका के ये क्या करे, स्टेबिलिटी गेन करे। ठीक। ये चाहता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच दे, क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खींचकर खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा तो ये ऊपर वाले पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ऑक्सीजन तो स्टेबल हो जाएगा, मगर ऐसा करने में कार्बन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज आने लगेगा। तो जैसे ही ऐसा होगा क्या होगा, ये जो Cl है, देखो Cl क्या हो गया था, H+ को छोड़ गया था और 2 इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज होके बैठा था, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स ले भगा था जो कोवेलेंटली बॉन्डेड थे। तो अब ये नेगेटिव जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव आने लगा, वो अनस्टेबल होने लगा, कार्बन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा Cl, यानी ये Cl कहाँ खिंच जाएगा, कार्बन पे। आपको इस रिएक्शन में एक बात ध्यान देनी है कि हाइड्रोजन भी कार्बन पे जुड़ा, हाइड्रोजन भी H+ भी जाके कार्बन पे जुड़ा और Cl- भी जाके कार्बन पे ही जुड़ा है। तो अब ये जो स्पीशीज बनी है, ये जो स्पीशीज बनी, ये क्या बन गया आपका, फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड। सो नाउ यू सी, आई होप यू अंडरस्टूड कि COHCl की रिएक्शन से फॉर्माइल क्लोराइड कैसे बनता है। ये गेटरमैन कोच रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप थी मैकेनिज्म की। Now you see what is the second step, step number 2 of Getterman Koch reaction. स्टेप 1 में आपने फॉर्माइल क्लोराइड बना लिया था। ठीक। तो फॉर्माइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बना था, आपने बना लिया था COHCl की रिएक्शन से HC+OCl, ये बना लिया था स्पीशीज। अब ये क्या करेगा, ये लेविस एसिड से रिएक्ट करेगा, दैट इज AlCl3। यहाँ होगा क्या कि ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो फिर से क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा और Cl- के फॉर्म में अलग हो जाएगा, और इससे की कारण इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके कौन चला गया, क्लोरीन लेके चला गया। अब ये जो क्लोरीन है ये क्या करेगा,
इसके लालच में जा रहा है क्योंकि ये क्या है, लेविस एसिड एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसकी तरफ खींचा चला जाएगा और स्पीशीज बनाएगा AlCl4 एंड देयर विल बी अ माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये बना लेगा AlCl4 माइनस, प्लस बचा क्या, यहां से ये चला गया Cl तो बचा HC डबल बॉन्ड O और C के ऊपर प्लस चार्ज, तो लिख लें क्या बचा, HC डबल बॉन्ड O और C के ऊपर प्लस चार्ज, ये बचा। ये आपकी सेकेंड स्टेप है। नाउ सी व्हाट हैपेंस इन थर्ड स्टेप ऑफ गेटरमैन-कोच रिएक्शन, दिस इज स्टेप नंबर 3। थर्ड स्टेप में व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, अब बेंजीन लिख लें, लास्ट स्टेप में बेंजीन के ऊपर जो है अब रिएक्शन किसकी होगी, ये जो बचा है ये आएगा और देखें जरा क्या होगा, इस कार्बन पे है प्लस चार्ज, ठीक, और यहाँ अगर ध्यान दें तो ये सब क्या है, सारे के सारे पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक, तो ये प्लस जो है इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा और कुछ ऐसा होगा कि यहाँ जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड, ये शिफ्ट होगा और इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक, ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो है कहाँ चला गया, ये पाई बॉन्ड आपका यूज हुआ और यहाँ बन गया बॉन्ड और ये बन गया आपका कंपाउंड, ठीक। अब जो है हुआ क्या, जो हाईलाइटेड बॉन्ड है वो तो यहाँ शिफ्ट हो गया है। अच्छा, फिर एक और बात ध्यान देने वाली है, वो ये है कि बेंजीन में हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन था, तो अभी जो है इस कार्बन पे जहाँ आपने COH लिखा है वहाँ एक हाइड्रोजन बाकी है, आपने हाइड्रोजन तो बाहर निकाला ही नहीं है ना। तो अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास जिससे ये कार्बन से जुड़ा था, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ दे जाएगा, जहाँ से आपने बॉन्ड उठा के ऊपर बॉन्ड लगा लिया था, ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में यहाँ से अलग हो जाएगा और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को कहाँ दे देगा, यहाँ यहाँ, तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा जो आपको चाहिए था। मैं इसको थोड़ा क्लियर बना देती हूँ, ये क्लियरली विजिबल नहीं है। यहाँ पर क्या बोला था कि ये सिचुएशन थी, मैंने कहा था यहाँ का बॉन्ड उठ के चला गया और ये बनाया ये वाला बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है ये बॉन्ड के साथ, तो अब दो चीजें तो रह नहीं सकती एक ही कार्बन पे, तो ये क्या होगा, ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जहाँ से आपने पाई बॉन्ड उठाया था, ठीक है। आई होप अब क्लियर है। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, और आपने देखा कि ये जो H निकलेगा यहाँ से वो क्या करेगा, आप ध्यान से देखें, ये H आपके पास AlCl4 माइनस बना था सेकेंड स्टेप में, इस AlCl4 माइनस ने जैसे ही देखा कि यहाँ से H+ फ्री हुआ है, फट से ये क्या करेगा, यहाँ से एक क्लोरीन ले लेगा, तो आपको इस बेंजल्डिहाइड के साथ एक मॉलिक्यूल HCl का और एक AlCl3 का वापस मिलेगा। So this was the third step entire. In second step what happened? The CH and the C containing plus charge with having a doubly bonded oxygen, this species was formed, right? तो ये स्पीशीज बनी और इस स्पीशीज ने क्या किया, इस बेंजीन पर रिएक्ट किया, एंड दिस इज हाउ द रिएक्शन टुक प्लेस। सो आई होप दिस इज क्लियर। एक्चुअली बेंजीन पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे ना, तो यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ चले गए, C डबल बॉन्ड OH को जोड़ने के लिए, और फिर वो जो पाई बॉन्ड चला गया था उसको किसने वापस किया, उसको इस H ने वापस किया, और इस H ने क्या किया, इस AlCl4 माइनस से एक Cl निकाल के HCl बना लिया, तो बचा क्या AlCl।